عوام کی خدمت کے منصوبوں کے نام پر عوامی نمائندوں کی سیاست، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر حکومت اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، نام تبدیل ہو پائے گا یا نہیں، سیاسی پارا ہائی ہو گیا۔ یہ خان صاحب کی سوچ ہے، یہ خان صاحب کی ڈاکٹرن ہے، مگر جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ان کا ایک سازش ہے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کو حکومتی سازش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے پیسے کم ہوں گے، پھر حکومت پروگرام ہی بند کر دے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی پر جیال برہم، ہمت ہے تو نام تبدیل کر کے دکھاؤ، نفیسہ شاہ کا حکومت کو چیلنج۔ نیئر بخاری نے پہلی خاتون وزیر اعظم کا نام ہٹانا پاگل پن قرار دے دیا، کہا سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل ہو کر رہے گا، گورنر سندھ عمران اسماعیل ڈٹ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مخالفت، کہا نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں، توجہ کام پر دینی چاہیے، گورنر کے بیان سے بھی لا تعلقی ظاہر کر دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام پیپلز پارٹی نے نہیں رکھا، اس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے حکومت کو یاد دلا دیا، کہا یقین ہے وزیر اعظم نے 8 ماہ بعد بھی آئین نہیں پڑھا ہوگا۔ خوف، ان کا سیکیورٹی، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اگر اس کو ہمارا ٹرین مارچ کے جواب میں، ٹرین کی سفر کے جواب میں یہاں آ کے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر میرا خیال میں وہ اس کے اوپر زیادہ کامنٹ ہے، میرے اوپر کم۔ مجھے لاڑکانہ آنا تھا، کوئی ٹرین مارچ نہیں کیا، بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو، کہا حکومت خوفزدہ ہے، ٹرین مارچ کے جواب میں وزیر اعظم کو گھوٹکی میں جلسہ کرنا پڑا، 18ویں ترمیم پر بھی ڈٹ گئے، قائم کرنا چاہتی ہے۔ بولتے ہیں کہ یہ اپنی کرتے ہیں، یہ جو کرپشن ہے ان سے بچنے کے لیے ہے، ان جھگڑوں میں لڑ کے لڑائی کر دی اپنی، یہ غلط ہے، یہ چور ہے، انہی لڑائیوں میں ہم عوام کے لیے نہیں سوچتے۔ مہنگائی کا عذاب گلے پڑ گیا، ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ حکومت پر برس پڑے، کہا ہم کسی اور کو نہیں، پاکستانی عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ حکمران آج بھی کشکول لیے پھر رہے ہیں، قرضہ لے کر شرمندگی کے بجائے مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ خورشید شاہ بے نظیر اور بھٹو کو بیچنا بند کریں، اداروں کی تباہی میں سب سے بڑا حصہ خورشید شاہ کا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی تنقیدی باؤنسرز، کہا یہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے اداروں میں میرٹ کے برعکس اور سیاسی بھرتیوں کا مار لگا دیا۔ صوبائی اسمبلی کے نشست پر انتخابی دنگل، تحریک انصاف کا کھلاڑی اور پیپلز پارٹی کا جیالہ آمنے سامنے۔ پی پی 218 ملتان کے ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی جاری، پی ٹی آئی کے مظہر عباس کے انتقال پر سیٹ خالی ہوئی تھی۔ عبدالحکیم سے لاہور تک موٹر وے M3 کا افتتاح، پاکستان میں لڑائی جھگڑے کی سیاست نہیں چاہتے، عمران خان کی قیادت میں چیلنجز سے نمٹیں گے، گورنر پنجاب کی گفتگو، کہا پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما اظہار الحسن گھوٹکی سے کراچی واپسی پر حادثے کا شکار ہو گئے، سر، کمر اور سینے پر چوٹیں آئیں، حالت خطرے سے باہر، 3 محافظ بھی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ سیاسی رہنماؤں کی اسپتال آمد، خواجہ اظہار کی خیریت دریافت کی۔ گجرات میں سسرالیوں نے سفاکیت کی انتہا کر دی، 4 بچوں کی ماں کو زندہ جلا دیا، رضوانہ بی بی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، لواحقین کے الزام پر شوہر، بیٹے سمیت 4 افراد گرفتار۔ کنکوٹ میں صحت کی سہولیات کا فقدان، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال 6 سال گزر جانے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکا، تعمیراتی کام بند، ٹھیکیدار کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला तनाज़ा बनता जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की साजिश करार दिया है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपी ने कहा कि वफाक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फंड्स का ज़िया समझती है। उन्होंने 18वीं तरमीम के बारे में कहा कि हुकूमत 1 यूनिट कायम करना चाहती है। ये खान साहब की सोच है, ये खान साहब की डॉक्ट्रिन है, मगर जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल उनका एक साजिश है कि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना है। एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। ये इनका डॉक्ट्रिन यही है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके 1 यूनिट कायम करना चाहते हैं। ना लॉजिकली, ना जमहूरियत के लिए, ना आपका वफाक के लिए ये अच्छा हो। जो भी तब्दीली की हुकूमत का या PTI की हुकूमत का मुखालिफ हो, क्रिटिक हो, उनका आवाज़ को दबाया जाए। ये गैर जमहूरी रवैया है। बेहतरीन हल निकाल सकते हैं जब हम बातचीत करते हैं, जब हम एक दूसरे के अपोज करते हैं, तो हम अच्छा मौक़िफ़ उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनका सोच ये नहीं है। बिलावल भुट्टो ने नाम की तब्दीली को साजिश करार दिया तो गवर्नर सिंध नाम की तब्दीली पर अड़े हुए हैं। इमरान इस्माइल का कहना है कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम ज़रूर तब्दील करेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म के आने पर वज़ीर आला की अदम मौजूदगी पर भी तनकीद की और कहा कि मुराद अली शाह को खुद इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए था, इसके लिए दावतनामा नहीं दिया जाता। ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील ज़रूर करेंगे। मुझे किसी वज़ीर आज़म का एक ख़त दावतनामा ला के दिखा दें, किसी का भी, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आज तक, कि किसी ने ख़त लिखा हो कि मैं आ रहा हूँ और आप मुझे लेने एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाएँ। ये कर्टिसी डिमांड होती है किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर की कि वो अपने वज़ीर आज़म को लेने एयरपोर्ट जाए। सिंध गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो मंसूबे कराची के लिए या सिंध के लिए, अंदरून सिंध के लिए आ रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि ये NFC अवार्ड्स में से पैसे नहीं कट रहे। तकलीफ किस चीज़ की होती है? बार बार हाथ बढ़ाने के बावजूद अगर आप उसको समझते हैं कि किसी तरह का थ्रेट है आपके लिए कि अवाम की फलाह हो जाएगी, किसी की अवाम का फ़ायदा हो जाएगा, उसमें आपकी थ्रेट नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका फ़ायदा है, अवाम के फ़ायदे में ही हुकूमत का फ़ायदा होता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर जोर दिया तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने नाम तब्दील करने की मुखालिफत कर दी है और कहा है कि वो नाम तब्दील करने के हक़ में नहीं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नाम पर नहीं, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको पीपल्स पार्टी वाले, उनके जाले मिसयूज करते हैं। जहां तक नाम की बात है, लोगों की राय हो सकती है। मैं जाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं। नाम नहीं, काम देखा जाता। मैं फिर आज कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कह रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ, मैं दीगर अपोजिशन जमातों से कह रहा हूँ, सियासी इख्तलाफात हैं, रहेंगे, रखिए। आपका मौक़िफ़ है, तस्लीम करते हैं। हमारा मौक़िफ़ है, तस्लीम कीजिए, लेकिन मुल्क की मफाद में, नेशनल सिक्योरिटी मामलात में आप तंगदिली नजरी का मुजाहरा मत करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि यकीन है वज़ीर आज़म बनने के 8 माह बाद भी इमरान खान ने आइन को नहीं पढ़ा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए कानून साजी की गई थी, ये नाम पीपल्स पार्टी ने नहीं रखा था। ये लोग सेनेट में ये मुद्दा लेकर पहुँचे नहीं सकते। कौमी असम्बली में इस पर उनके अपने लोग उसकी मुखालफत करेंगे। वज़ीर आज़म बन गए, 8 महीने हो गए, मैं यकीन से कहता हूँ कि आइन की किताब खोल के नहीं पढ़ी होगी शख्स ने आज तक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो उसका पूरा नाम है ना, जो कानून है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010। जब ये प्रोग्राम आया तो उस वक्त कानून नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम को बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, फिर ये तमाम लोगों तक पहुंचा कि इस पूरे प्रोग्राम को एक कानून का जो है वो उसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कौमी असम्बली ने भी और सेनेट ने भी इत्तफाक राय से मंजूर किया। ना सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी 2010 में, और ना कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी 2010 में। तो ये पीपल्स पार्टी का भी प्रोग्राम नहीं था। ये जो नाम रखा ये पीपल्स पार्टी ने नहीं रखा।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मुबशिर साहब, इसके अलावा मुनीज़ जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। राना साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि रेजिस्ट किया जा रहा है। बिलावल ये कहते हैं कि ये एक साजिश है और जो PTI गवर्नमेंट कहती है कि हर हाल में नाम तब्दील होगा। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि ये कानून है, कानून के तहत ये नाम रखा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर 1। दूसरी ये है कि अगर इसका नाम चेंज करना है तो उसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी कानून में। तो अगर आप कानून में तरमीम करके इसका नाम बदलना चाहते हैं जरूर बदलें, लेकिन द पॉइंट है कि इसका एक दूसरा भी एक एंगल है जिसकी वजह से नाम बदले जाने की बातें हो रही हैं कि इसका नाम बदला जाएगा और वजीर आजम ने भी कहा कि इसका नाम बदल देंगे। उसका रीजन ये है कि ये जनाब इसके सिंध के इंटीरियर सिंध में खास तौर पे इसको बेनज़ीर की बहुत फॉलोइंग है, बेनज़ीर भुट्टो की बहुत फॉलोइंग है और पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे असर्ट करती है इंटीरियर सिंध में। तो इंटीरियर सिंध में जो असर्ट करती है, कराची में शायद इतना असर्ट ना करती हो पीपल्स पार्टी अब, लेकिन इंटीरियर में अभी भी असर्ट करती है। सो वो जो असर्ट करती है और वो जो उसको कहा जाता है कि बेनज़ीर जो है, उसमें इन सादे लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो कहा यह जाता है कि बेनज़ीर चली भी गई लेकिन तुम लोगों को आज भी जनाब उसके जरिए उसके नाम से तुम्हें पैसे मिलते हैं। सो वो एक वो इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पे। वो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जनाब बेनज़ीर जो है अगर दुनिया से रुखसत भी हो गई है तो उनके नाम से हमें पैसे मिलते रहते हैं। फिर इसमें ये है कि कई मरतबा ये भी देखा गया है कि जनाब ये फंड जो है मिसयूज भी होता है, ठीक है। तो जब मिसयूज होता है तो उसमें भी एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मिसयूज होता है। तो वो भी एक चीज है, नंबर 1। नंबर 2, बेनज़ीर के नाम से जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल इंटीरियर सिंध में, उसको डिफ्यूज करने के लिए भी हुकूमत कह रही है कि इसका नाम बदला जाए। नंबर 3, इसका जनाब वो जो नाम लेके चलते आ रहे हैं पॉलिटिकल रीजन की वजह से, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये कहती है कि जनाब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सिंध के अंदर, खास तौर पे इंटीरियर सिंध के अंदर, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो बनते जरूर हैं कागजों में, लेकिन जमीन पर उन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, मौजूद ही नहीं होते सिरे से। सो वो इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए भी वजीर आजम ने कहा जनाब कि इसका नाम ही चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल, राना साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह राना साहब ने इसके 2 एंगल्स बताए, एक सियासी है और एक कानूनी हैसियत रखता है, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या नाम को बदल देना ही ज़रूरी है या करप्शन रोकने के लिए और भी कोई तरीका हो सकता है? देखिए, ये जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनकी फंडिंग या तो हुकूमत पाकिस्तान करती है या फिर बाज़ खात इसके लिए जो मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज हैं उनके वो भी फंडिंग करती हैं। उनका जो जिस तरह की शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की है, उनके नामों पर जो प्रोग्राम होते हैं उनको अगर कंटिन्यू रखा जाए तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि उसके नतीजे में फिर बाज़ खात किसी एक तबके के या उस तबके के या बहुत ज़्यादा लोगों के उससे एक जज्बात मजरू होते हैं। नफ्सियाती तौर पर लोग समझते हैं कि शायद बुनियादी मकसद उस शख्सियत का नाम हटाना है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का स्ट्रक्चर ऐसा था, इतना बड़ा था कि उनके नाम पर जो भी प्रोग्राम है, उनके नाम पर अगर किसी जगह का नाम रखा गया है, उनके नाम पर अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है या कोई एक चैरिटी प्रोग्राम है या एक कोई इस तरह का प्रोग्राम है जो कि खास तौर पर गरीब तबके के लिए था, खवातीन के लिए था खास तौर पर, तो उसको कंटिन्यू रखना मेरा ख्याल है नफ्सियाती तौर पर उसकी अहमियत होती है। फिर उस तरह ये भी उसके साथ एक मैसेज आता है कि जो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने सियासत में या माशरे में कोई बहुत अहम किरदार अदा किया होता है तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम भी बाज़ का चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको जारी रखना जो है उनको बंद करने से बेहतर होता है। उसके नतीजे में सियासी इंतशार पैदा होता है लोगों के। ठीक है, बंद करने से बेहतर है कि जारी रखा जाए। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुनीज़ जहांगीर से जानना चाहूंगी, मुनीज़ आप क्या समझती हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम नाम की तब्दीली क्यों ज़रूरी है? क्या इसको ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता?
जी बिल्कुल, तारिक फजल चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। क्या जरूरत है किसी भी प्रोग्राम के नाम बदलने की, और जिस तरह उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक हम पाकिस्तानी के तौर पे उनको नहीं जानते, मगर बैनुल अक़वामी सतह पे उनका एक बहुत बड़ा नाम था। वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी। और अगर आप बाकी मुल्कों में जाएं तो उनके लीडरान को उनको सराहा जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके नाम पे एयरपोर्ट्स के नाम रखे जाते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर उनकी सियासी पार्टी ने उनके मंशूर के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक एक प्रोग्राम शुरू किया था जिससे बहुत सारे पसमानदा इलाकों की ख़वातीन की मदद हुई थी, तो उसका आप नाम चेंज कर दें। मेरा ख्याल है ये एक पेटी पॉलिटिक्स है और ये कोई इतनी बड़ी पार्टी को बड़ा दिल रखना चाहिए और इन छोटे छोटे मामला के ऊपर नहीं उलझना चाहिए ऑपोजिशन के साथ। आगे ऑपोजिशन के साथ मामला इतने ख़राब हैं और अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है उसके अंदर आप 100 निकाल सकते हैं खामियां, मगर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से मदद हुई है। ठीक है, मुझे इंतहाई माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जिस तरह से कि हुकूमत प्रोग्राम का नाम जो है वो तब्दील करना चाहती है बेनज़ीर प्रोग्राम का, तो आप क्या समझते हैं कि इस नाम की तब्दीली ज़रूरी है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि ये नाम को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से तब्दील नहीं हो सकता। ये एक लेजिस्लेशन के जरिए, पार्लियामान के कानून के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला था, इसका नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये सोच बड़ी घटिया होगी अगर कोई इसको तब्दील करना चाहेगा या कराना चाहेगा दोनों अतराफ से, इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वो लीडर है जिनको अपने पराए मुखालिफ सारे पाकिस्तान का मौसम गर्दानते हैं। उनके नाम से एक प्रोग्राम था और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख्याल भी उन्हीं के दिमाग में था। पॉवर्टी एलिविएशन का ये प्रोग्राम दुनिया में बड़ा रिकग्नाइज हुआ, ये बीबी शहीद का विजन था, उन्हीं के नाम से हमने शुरू किया था। वैसे भी मियां साहब के दौर में भी इसको BISP कहा जाता था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाम लेते तकलीफ होती थी, और अब भी इस गवर्नमेंट का यही आलम है। नफरत का ये आलम इस हुकूमत का वतीरा बन गया है कि गालियां दो, गलाजत बको और उसके नतीजे में तलखियां बढ़ जाए। यही काम कोई मुल्क ऐसा है जिसका वजीर आजम, हालात मुल्क के खराब हो और वजीर आजम नौजवान खलंडरे लड़कों की तरह स्टेजों पे खड़ा होके सारे मीडिया के सामने अपने मुखालफों को ललकार रहा हो कि आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरी आंखों में आंखें डालो, मेरे बाजू में बाजू डालो, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा पानी चेक कर लूंगा। क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या वजीर आजम इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं? हाँ, हमारा ख्याल ये है, इससे पहले हमारी सोच और कोशिश ये थी कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चले ताकि मुल्क में जमहूरी इदारे चले, लेकिन ये जो वजीर आजम और उसकी जमात की फाशिस्ट सोच है, अनार्किस्ट सोच है, वो तसादम के जरिए लोगों की तवज्जो रियल मसाइल से हटाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल हालात में है जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुश्किल हालात में है, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है और उसके ऊपर लोगों की जिंदगी बड़ी तंग है। उस तरफ काम नहीं हो रहा, जिंदगी में और तंगियां हो रही हैं। अभी रुपया सस्ता होता जा रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, टैक्स की रेवेन्यू कम हो रहे हैं। 3300 अरब रुपया। कायरा साहब, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कौमी प्रोग्राम की हैसियत रखता है, ये फरमाएगा कि आप कहते हैं कि ये कानून साजी के बगैर नहीं हो सकता और हकीकत भी यही है। तो पहले मैं अपने सवाल का जवाब दूंगा मेरे अजीज। जी जी, आपके पास वक्त है तो जी फरमाइए, आप फरमाइए, आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं है तो फिर आप बात मुकम्मल कर लें कायरा साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि ये हकीकत की तरफ तवज्जो हटाने के लिए ये यानी लड़ाइयाँ और गाली गलौज शुरू की हुई है बशमूल वजीर आजम के, और इससे यकीनन मीडिया इसको प्ले अप करेगा, वजीर आजम की तरफ से बात चलेगी, उसकी मुखालफत में भी इसी तरह की बातें होंगी, सो मुल्क के लिए नुकसान होगा। ये बिल्कुल अपने फेलियर का ऐलान कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर का नाम लोगों के दिलों से तो नहीं निकाला जा सकता। न ज़ियाउल हक निकाल सका था, ना मुशर्रफ निकाल सका था, ना कोई और निकाल सका, तो ये निकाल सकेंगे।
نہ بے نظیر کا نام نکل سکتا ہے، نہ بھٹو کا نام نکل سکتا ہے.